Hello everyone. So in this video we are going to talk about the femoral sheath. In the last video we discussed about the femoral triangle, which is a very important 5 marks question. It comes in the short essay type, generally in the university examination or in the semester examination. Femoral sheath वैसे तो नहीं आता है, but still it is important, right? तो like it does not come in the very important topics. जो femoral sheath है आपका, it does not come in the category of very important topics, जो कि femoral triangle उसमें आता है very important में. So let us talk about the femoral sheath now. So in the last video we discussed about the femoral triangle, and now the contents of the femoral triangle are enclosed within the femoral sheath. ठीक है, तो sheath का मतलब क्या हुआ? sheath का मतलब हो गया basically covering. ठीक है, तो first of all let me revise the femoral triangle to you. So this is the clear cut dissection of the femoral triangle and it can be vividly seen. You know, inguinal ligament यहाँ पर है, ठीक है, which forms the base of the triangle. This will form the base. Okay, just a quick revision. This will form the base, the inguinal ligament. Then here is your sartorius muscle which forms the lateral border. Then here is your adductor longus that forms the medial border. And here are the contents, the 3 main contents of your femoral triangle, right? So यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आर्टरी को अगर हम रेफरेंस लेते हैं, सो इसके जस्ट मीडियली द femoral vein is present and here the femoral nerve is present lateral side में, ठीक है. So these are the contents of the femoral triangle, ठीक है. अब क्या होता है कि जो femoral triangle के जो contents होते हैं ये सारे के सारे enclosed रहते हैं in the femoral sheath except of the femoral nerve. This is very much important. यहीं से एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में बन सकता है. ये आपका femoral sheath का डायग्राम है. सो ये देखिए, ये आपका एक फेसिया है. फेसिया मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि कनेक्ट कर रही है, मतलब जो कवर कर रही है, किसे कवर कर रही है? आपके कॉन्टेंट्स ऑफ द femoral triangle. दिस वन इज द ट्राइंगल, ठीक है. और देखो ये वाला तुम्हारा जो है ये तुम्हारा femoral nerve है, ठीक है. ये तुम्हारा femoral nerve है और ये इस femoral sheath में इंक्लोज्ड नहीं है. इसमें क्या क्या इंक्लोज्ड है femoral sheath में? आर्टरी इंक्लोज्ड है आपका, वेन इंक्लोज्ड है आपका. ग्रीन कलर से लिम्फ नोड को डिनोट किया गया है, ठीक है. सो लेट मी डू अ क्विक डिस्कशन राइट हियर. सो व्हाट इज अ femoral sheath? Femoral sheath is a funnel shaped sleeve of fascia enclosing the upper 3 to 4 centimeter of the femoral vessels, right? So femoral vessels में वही आपके आर्टरी आ जाएंगे एंड वेन्स आ जाएंगे and lymph node as well. Now the sheath is formed by the downward extension of 2 layers of the fascia of abdomen. अब क्या होता है कि ये जो शीथ होता है ना, ये बेसिकली कहाँ से चल के आ रहा है? आपके एब्डोमेन से. एब्डोमेन अलग हो गया, ठीक है, लोअर लिम्ब अलग हो गया, ठीक है. सो ये आपका जो शीथ आता है ये एक्सटेंशन हो जाता है 2 layers ऑफ फेशिया ऑफ एब्डोमेन. लाइक फेशिया का एक्सटेंशन हो जाता है नीचे की तरफ लोअर लिम्ब में, ठीक है. सो जो एंटीरियर वॉल ऑफ द शीथ होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस. नाउ व्हाट इज फेशिया ट्रांसवर्सालिस? अब देखो एब्डोमेन में क्या होता है, बेसिकली एब्डोमिनल वॉल के लेयर्स होते हैं कुछ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ मसल्स, ठीक है. और उसी में क्या होता है कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इज अ मसल, ठीक है. सो सपोज दिस इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये एक मसल का लेयर है, इसी के बीच में आता है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है. इसी के बीच में रहेगा और यहाँ पे फिर तुम्हारा पेरिटोनियम हो जाता है. इसके आगे और भी बहुत सारे मसल्स के लेयर होते हैं और ये तुम्हारा फुल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाता है, ठीक है. अब द थिंग इज कि अगर हम आगे का बात करेंगे, इफ़ आई डिस्कस अबाउट आगे का मसल्स, आगे के मसल्स, देन दैट will be the muscles of the anterior abdominal wall which is the part of the abdomen. So let us keep it centered to the lower limb, right? So main इसमें ये नोटिस करना है कि fascia transversalis से क्या आपका बना रहता है? anterior wall of the sheath, ठीक है. So this is your whole sheath, this is the sheath, ठीक है. इसका जो ये वाला एंटीरियर वॉल आपको नज़र आ रहा है दिस विल बी मेड अप ऑफ फैशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है. पोस्टीरियर वॉल जो होता है दैट इज फॉर्म बाय द फेशिया इलियाका, जो कि आपके इलियाकस मसल को भी कवर करता है. दिस वन इज द इलियाकस मसल, ठीक है. वेट, ये कौन सा मसल है? ये वाला आपका इलियाकस मसल है, ठीक है. तो पोस्टीरियर वॉल जो रहता है ऑफ योर रेक्टस शीथ
ये वाला जो पीछे की तरफ का वॉल होगा दैट इज़ मेड अप ऑफ फेशिया इलियाका। इन्फीरियरली जो शीथ होता है दैट मर्जेस विद कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फेमोरल वेसल्स। नीचे की तरफ में आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ ये नीचे जाके मर्ज कर जाता है। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट सा बात है कि ये जो आपका फेमोरल शीथ है दिस इज़ एसिमेट्रिकल इन नेचर। देखने में ये एसिमेट्रिकल लगेगा। इसका लेटरल वॉल जो होता है दैट इज़ वर्टिकल, ठीक है, और जो मीडियल वॉल होता है दैट इज़ ऑब्लिक। ये वाला जो वॉल है इसका लेटरली आपके प्रेजेंट है, ये वाला इसका लेटरल वॉल बोलेंगे इसको, एंड इसको हम लोग मीडियल वॉल बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। ये देखो, ये जो तुम्हारा मीडियल वॉल होगा, मीडियल वॉल जो होगा ये थोड़ा कैसा है, ये थोड़ा ऑब्लिक होगा, और ये वाला थोड़ा वर्टिकल होगा। सो दिस इज़ योर लेटरल वॉल एंड योर मीडियल वॉल। तो यहाँ पे वॉल्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ा, देन फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, एंड देन अबाउट द वॉल्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि शीथ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टम। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट 1, 2 एंड 3। तो ये वाला इसको क्या बोलेंगे, इसको सेप्टम बोलेंगे। लाइक इसमें डिवीजन हो जाता है 3 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। सो ये वाला आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इन कंपार्टमेंट्स के कुछ कुछ नाम भी हैं जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लेटरल या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट। सो जो लेटरल, ये वाला तुम्हारा लेटरल होगा, लाइक बॉडी इस साइड है तो दिस वन इज़ द मीडियल, दिस वन इज़ द लेटरल। तो जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या रहता है आपका फेमोरल आर्टरी। अब हम लोग पढ़ चुके थे अपने फेमोरल ट्रायंगल में कि फेमोरल आर्टरी के अलॉन्ग एक नर्व भी पास करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटोफेमोरल नर्व। तो फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व जो होता है दैट पासेस अलॉन्ग विद द फेमोरल आर्टरी, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व, नॉट द जेनाइटोफेमोरल नर्व बट द फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट या फिर इसको वेनस कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। दिस इज़ योर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। एंड देन आ जाएगा आपके पास सबसे लास्ट में मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट में ही क्या होता है, तुम्हारे ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड इसी को फेमोरल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके MCQ में पूछा जा सकता है इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर इन द सेमेस्टर या फिर इंटरनल एग्जाम जो होते हैं, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसी को फेमोरल कैनाल बोलते हैं। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपके फेमोरल शीथ में इंक्लोज नहीं होता है, सो दैट इज़ योर फेमोरल नर्व। सी इट इज़ लाइंग आउट ऑफ द फेमोरल शीथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा हुआ है, फेमोरल नर्व होता है आपके इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में, एंड मीडियल कंपार्टमेंट में क्या होता है, तुम्हारा लिम्फेटिक कंपार्टमेंट होता है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एंड इज नोन एज द फेमोरल कैनाल, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमोरल शीथ। ये आपके BDC का डायग्राम है ये वाला। सो दिस इज़ योर फेमोरल शीथ। यहाँ पे आपको फेमोरल आर्टरी दिख रहा है इन द लेटरल कंपार्टमेंट। दिस इज़ योर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड दिस इज़ योर मिडिल कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको वेन दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। एंड यहीं से पियर्स करके आपका ग्रेट सैफरस वेन भी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है ये लिखने को, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सीधे फिर ये भी लिख सकते हैं कि एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय फेशिया इलियाका, ठीक है, एंड इन्फीरियरली इट मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपके एब्डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको एब्डोमिनल मसल्स के बारे में पढ़ना होगा, ओके। सो दिस इज़ योर फेमोरल शीथ, दीज आर द डायग्राम्स, दैट इज़ इट, थैंक यू।